Students, today we will study about the topic as you can see on your screen and numerical differentiation. First of all, some introduction about numerical differentiation. Consider a set of values xi, yi as you can see on the top of the page of a function. The process of computing the derivative or derivatives of that function at some values of x from the given set of values is called numerical differentiation. And we know that if the values are equispaced, the values of x are equispaced and the derivative is required. अगर हमने values जो x की हैं वो equispaced होंगी, means कि उनका जो difference है वो common हमारे पास वो constant होगा, ठीक है? And the derivative is required near the beginning, कि जो भी डेटा गिवन है और x के किसी जो बिगनिंग वैल्यूज पे कहा जाता है कि आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव फाइंड करें. In that case we will use Newton forward difference formula. And if the derivative is required near the any end value of the table, किसी भी end value पे अगर हम find out करना चाहते हैं, as we have learned before this, Newton forward difference and Newton backward difference. So अगर end value पे हमने किसी पे derivative finds करना होगा तो हम क्या use करेंगे? We will use Newton backward interpolation formula. And in the case when we need to find the derivatives at any middle points में अगर हमें किसी पे derivative find करना होगा, in that case we will use central difference interpolation formula or Stirling interpolation formula. We will use that formulas. Okay. And also please note down, in this lecture we will learn about when the values are equispaced. So we will learn here Newton forward difference formula we will apply, Newton backward difference formula we will apply, and Newton Stirling interpolation formula we will apply to find the derivatives. So first of all, derivatives using Newton forward difference formula. And we know that Newton forward difference interpolation formula is, as you can see on your screen, we know about the formula. So this is the formula, this one. Equation 2 is the formula of Newton forward interpolation formula that we have already learned. Okay, we know that what is P is equal to x minus x naught divided by h. So we can say this is equation 2. Now what we will do here, from 1 we can write equation 1 like this. राइट साइड पे हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं. ओके, सो व्हेन वी विल ओपन द ब्रैकेट्स, तो ये वाली टर्म हमारे पास हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस पी, एज यू कैन सी दिस वन. एंड सिमिलरली व्हेन वी विल मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दीज टर्म्स, सो दिस विल बिकम्स लाइक this one, p cube minus 3p square plus 2p divided by 3 factorial, and we can say this is equation 1 dash. okay, हमने इक्वेशन 1 को ही हमने 2 की फॉर्म में लिखा है और उसमें जो मल्टीपल फॉर्म में थे p, उनको हमने मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन 1 डैश कह दिया. Now after this हमें डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं. ओके, वी नीड टू फाइंड डेरिवेटिव्स. तो क्या करेंगे, वी नो फाइंड dy by dx. First derivative we need to find, this dy by dx is the first derivative. And we can see that if we need to find dy by dx, this is the equation 1 dash. अब 1 dash को हम use करेंगे और dy by dx find करेंगे. Okay, so we will use chain rule. और chain rule क्या होता है, as you can see this y this y is, you can see here we have in the form of p. तो हम क्या find करेंगे, dy by dx is equal to dy by dp into dp by dx. Okay, कि हमें अगर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, to find the first derivative, this one, first of all we need to find dy by dp, the derivative of equation 1 dash with respect to p. और फिर क्या करेंगे, जो p है हमारे पास, and we know that what is p की वैल्यू हमारे पास x minus x naught divided by h है, इसको हम with respect to x डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे
और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। ओके, सो to find dy by dp differentiate equation 1 dash with respect to p। अब p के रिस्पेक्ट हम इसको डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे इक्वेशन 1 डैश का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एज यू कैन सी हेयर फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू p। सो क्या हमारे पास आएगा, दिस टर्म विल बिकम 0। ठीक है, तो dp बाय dp 1 हो जाएगा, डेल्टा वाई नॉट आ जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, यू कैन सी दिस विल बिकम्स इक्वेशन 1 डैश। दिस इज वेरी इजी, यू कैन सी द डेरिवेटिव्स ऑफ इक्वेशन 1 डैश विद रिस्पेक्ट टू p। ओके, वी आल्सो नीड dp बाय dx। हमें ये जो p है, p इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाय h, इसका भी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू x। सो आल्सो डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव। अब जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, देखें तो dx बाय dx तो 1 हो जाएगा, 1 बाय h की फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगा, x नॉट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू वैल्यूज, this is 1 double dash dy by dp and this dp by dx is equal to 1 by h. Now we will put these two values in equation 3। 3 में अब हम ये values को put करेंगे। We will put the value of dy by dp, value of dy by dp and dp by dx in this equation 3। So when we will put the values of these two, so you can see here, so putting the values, जब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो ये आ जाएगा, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, dp बाय dx 1 बाई एच के फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, इनटू dy बाय dp, जो भी हमने ऊपर फाइंड आउट किया dy बाय dp आप देख सकते हैं 1 डबल डैश इक्वेशन के फॉर्म में। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज आवर first derivative of y with respect to x, this one। अब नोट में क्या है, टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव एट द गिवन डेटा पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। ओके, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे आप फाइंड आउट करें डेरिवेटिव। तो इन दैट केस p की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, व्हेन वी विल पुट x इक्वल टू एक्स नॉट। तो देखें यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें x इक्वल टू एक्स नॉट, सो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट क्या हो जाएगा, 0। सो p विल बिकम 0। okay, so to find the value of find the derivative at x equal to x naught, p will become 0। आप ये जो वैल्यू है dy by dx, इसमें वैल्यूज को पुट करें, p की वैल्यू 0 पुट कर दें, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, सो डेल्टा y नॉट माइनस 1 by 2 डेल्टा स्केयर y नॉट, दिस विल बिकम 0, दिस बिकम 0। 2 over 3 फैक्टोरियल हमारे पास आएगा, 2 और 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करें तो 1 by 3 आ जाएगा, डेल्टा क्यूब वाई नॉट। सिमिलरली दिस बिकम 0, दिस बिकम 0, दिस बिकम 0। और -6 over 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करें तो -1 by 4 बचता है, डेल्टा वाई नॉट प्लस सो ऑन। सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू x नॉट। क्लियर? सो प्लीज नोट डाउन द फर्स्ट डेरिवेटिव by using forward and Newton forward interpolation formula, और जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो x इक्वल एक्स नॉट पे आता है, वो हमारे पास उसकी वैल्यू दिस वन है जिसको मैंने अभी टिक किया है। प्लीज नोट डाउन दिस वैल्यू, दिस फार्मूला और दिस इक्वेशन, बिकॉज वी विल यूज दिस वन इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, after this, to find out the second derivative, अभी तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है at x इक्वल टू एक्स नॉट। अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना हो
टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वी हैव। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ चुका है, that is dy by dx। उसी का क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे with respect to x। so d by dx into dy by dx is equal to d square y by dx square। so this is the second derivative। हम क्या करेंगे, उसी को वो जो हमारे पास चेन रूल था dy by dx dp by dx, उसका अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू p हम फाइंड करेंगे, ओके, विद रिस्पेक्ट टू p। और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, we know the value of this one is 1 by h, इसको 1 by h लिख लेंगे, d by dp dy by dx, इट्स मीन जो dy by dx हमारे पास जो इक्वेशन ऊपर आई है दिस वन, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये जो dy by dx हमारे पास आया दिस वन, दिस इक्वेशन, ये जो है इसी का हम डेरिवेटिव लेंगे अगेन, ओके। इसी इक्वेशन का फिर से अगर जब हमने डेरिवेटिव लिया, when we will take again the derivative of this equation d with respect to dp, जब हम इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास इसका जो सेकंड डेरिवेटिव आता है हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड पुटिंग ऑल द वैल्यूज, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला। और अगर आप इसको x इक्वल टू एक्स नॉट पे फाइंड करना चाहते हैं तो p की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू एक्स नॉट is equal to 1 over h square into delta square y naught minus delta q y naught plus 11 by 12 delta raised to power 4 y naught plus so on। So this is the second derivative formula to find the second derivative at any beginning point। शुरू के किसी पॉइंट पे अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं by using न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, तो हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव आएगा। सिमिलरली जब हमने थर्ड डेरिवेटिव को फाइंड आउट किया तो इसका आंसर ये आता है। सो यू प्लीज नोट डाउन द थर्ड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर h क्यूब into delta raised to power 3 y naught minus 3 by 2 delta raised to power 4 y naught plus so on। and similarly we can find fourth derivative, fifth derivative and so on। ठीक है, तो अभी जो आपने नोट करना है यहाँ पे, यू प्लीज नोट डाउन द फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके, दिस वन, ये जो भी मैंने आपको बताया, द फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू एक्स नॉट, अभी हमने जो लिखा है दिस वन, यू प्लीज नोट डाउन दिस वन, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव जब हमने फाइंड आउट करना होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यू कैन सी इट, सॉरी दिस वन, ठीक है। और इफ यू नीड टू फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव तो उसके लिए हम फार्मूला जो यूज करेंगे वो दिस वन यूज करेंगे। ओके, इसी तरह से वैल्यूज फाइंड आउट की गई हैं यहाँ पे, यू कैन सी फार्मूला फॉर डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। और आपको पता है व्हेन वी यूज न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन, व्हेन द वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्विडिस्टेंस, ठीक है, और हमें किसी एंड वाली वैल्यू पे अगर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तब हम यूज करते हैं न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन को फार्मूला हमने पहले से सीखा हुआ है, वहां से डायरेक्ट वैल्यूज आपको दिखाई जा रही हैं, जैसे अभी हमने अभी आपको दिखाया, हाउ कैन वी फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसी तरह से हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को जब हमने अप्लाई किया और वैल्यूज को पुट किया, डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव एंड not this one second derivative, this is also second derivative, but to find at x is equal to xn, ठीक है, इसमें इसके केस में हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस के केस में हमारे पास xn की फॉर्म में होता है। एज यू कैन सी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है एट x इक्वल टू xn हम फाइंड करते हैं, और इसमें हम इन्वर्टेड जो डेल्टा है उसको हम यूज करते हैं xn। सिमिलरली दिस वैल्यू इज द सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू xn, उसकी वैल्यू ये है। प्लीज नोट ऑन ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। और ये हमने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं बाय यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। उसको सिंपलीफाई करके यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यूज दिखाई जा रही हैं।
एंड वी कैन इजीली प्रूव, इसको भी हम जैसे फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से हमने डेरिवेटिव फाइंड किए हैं, सिमिलरली वी कैन फाइंड दिस वन। क्लियर? So next we have स्टाइलिंग फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। एंड यू कैन सी कि जब हमें जो वैल्यूज ऑफ एक्स हैं इक्वी डिस्टेंस हो, इक्वी स्पेस पे हो, और हमें किसी सेंट्रल वैल्यू पे अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना हो, देन वी विल यूज स्टाइलिंग फार्मूला, और वहां से ये डायरेक्ट आपको वैल्यूज दिखाई जा रही हैं। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके। और अगर हम x इक्वल एक्स नॉट पे और p 0 हो जाएगा, इन दैट केस वी हैव दिस फार्मूला, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव एंड दिस इज थर्ड डेरिवेटिव। ये हमने न्यूटन्स जो स्टाइलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला था वहां से ये वैल्यूज को निकाला है डेरिवेटिव्स लेके। जैसे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हमने अप्लाई किया है, सिमिलरली इस पे भी हमने चेन रूल अप्लाई करके और ये तमाम वैल्यूज को हमने फाइंड आउट किया। जी सलमान अली बताएं बेटा। सलमान अली सर काइंडली थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, जिधर वो सेकंड डेरिवेटिव नहीं लिया वो चेन रूल का सर हमने, सर मैंने एक नोट करनी वो जरा। ठीक है बेटा, मैं कर देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस। आप ये नोट कर लें, फिर मैं ऊपर दोबारा से कर देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। So these are the formulas to find the derivative at any middle point by using Stirling interpolation formula। उसके थ्रू से ये तमाम derivatives find की। ये होप सो आपने ये नोट कर लिया होगा। ओके, मैं फिर से आपको शो कर देता हूँ। where we have find the first derivative by using chain rule in Newton forward interpolation formula, this one, ये हमारे पास उसका फार्मूला था, वन डैश इक्वेशन, और इस पे हमने चेन रूल अप्लाई किया था, dy बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, और हमने y का जो दिस y वन डैश इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट किया, और जो p था p इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई h, उसका हमने विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया, और फिर हमने वैल्यूज पुट की हैं इसमें थर्ड में। ओके, इक्वेशन थर्ड में वैल्यूज पुट की, हमारे पास ये इक्वेशन जो आप देख सकते हैं, दिस वन, दिस इक्वेशन ये आ चुकी थी, दिस वन। ओके, होप सो आपको ये फार्मूलाज आपने नोट कर लिए होंगे। ओके, नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू अप्लाई दीज फार्मूलाज टू फाइंड द डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। Okay, the first question, as you can see, find the first and second derivatives of f of x at x is equal to 1.5 with the following data। ठीक है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और किस पॉइंट पे फाइंड करना है, x is equal to 1.5 पे। सो अगर x is equal to 1.5 है, इट्स मीन we need to use the formulas that we have find out by using न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। क्योंकि अभी आपको स्टार्ट में मैंने बताया था, जब हमें डेरिवेटिव किसी इनिशियल वैल्यूज पे फाइंड करनी हो x की, तो अब हम यूज करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अगर हमें किसी एंड वाली वैल्यू पे कहा जाता है, फिर हम यूज करते हैं न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से जो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हैं। और अगर हमें कहा जाता है किसी मिडिल पॉइंट पे फाइंड करें, देन वी विल यूज स्टाइलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला। ओके, so we have to find out the derivative at x equal to 1.5, therefore we will use Newton forward interpolation formula हम use करेंगे। okay जी, we know that what is p is equal to x minus x naught divided by h, clear? And what is h? We know that in this case
the value of h is equal to you can see easily 2.0 minus 1.5 is equal to 0.5. हमारे पास यहाँ पे जो h की वैल्यू है वो 0.5 एंड दिस इज इक्वी डिस्टेंस इक्वी स्पेस डेटा आप चेक कर सकते हैं किसी भी टू कंसेक्टिव वैल्यूज का अगर हम डिफरेंस लें तो 0.5 आ रहा है. अब p की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं? वी नो फॉर द फार्मूला ऑफ p इज इक्वल टू x माइनस x नॉट डिवाइड बाई h. सो x नॉट क्या है हमारा 1.5. ओके, x नॉट इज इक्वल टू 1.5 और हमें डेरिवेटिव भी किस पे फाइंड करना है 1.5 पे. So 1.5 minus 1.5 is equal to 0. So p is equal to 0 in this case. And also please note down what is the value of y naught. Y naught is equal to 3.375. Okay. अब हम इसको देखते हैं डिफरेंस टेबल इसका ड्रॉ करते हैं और हमें पता है हाउ टू ड्रॉ द डिफरेंस टेबल. ये हमने पहले से सीखा हुआ है. अभी आप ये वैल्यूज x की तमाम चेक कर लें 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 and 4.0 and the corresponding values of f of x as you can see on the screen. इसका टेबल हम ड्रॉ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. as you can see this is the table. okay, so टेबल में क्या करेंगे हम सबसे पहले किसकी वैल्यूज लिखेंगे x की वैल्यूज लिखी. as you can see here these are all the values of x and this is the value of y or you can say this is the value of f of x. ठीक है, जो टेबल में हमें गिवन थी. First of all find delta y and we know how to find delta y. This is very easy. 7 minus 3.375 हमारे पास 3.625 फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी एंड सिमिलरली सेकंड वैल्यू जब हमने फाइंड करनी है तो 13.625 माइनस 7 करेंगे 6.625 हमारे पास आ जाएगा एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड ऑल द अदर वैल्यूज. नेक्स्ट वी विल फाइंड डेल्टा स्क्वायर y. ओके, एज यू कैन सी हियर ये भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है. delta cube y, delta raised to power 4y and delta raised to power 5y. So these are all the values and this is forward difference table. Newton forward difference table हमने find out किया हुआ है as you can see it and we have already learned how to find out this table. So next अब हम फार्मूला देखते हैं. हमें second derivative चाहिए और first derivative चाहिए. Okay, so this is the formula to find first and second derivative as you can see on the screen. First of all the formula क्या हमें उसको देखते हैं. The formula to find the first derivative is equal to 1 over h into delta y naught minus 1 over 2 delta square y naught plus 1 over 3 delta q y naught minus 1 over 4 delta raised to power 4 y naught. So इस टेबल में अगर आप देखें डेल्टा y naught, डेल्टा स्क्वायर y naught, डेल्टा q y naught, डेल्टा raised to power 4 y naught की वैल्यूज आप देखें. So you can see it easily. This is delta y naught 3.625, delta square y naught 3, delta cube y naught 0.750, delta raised to power 4 y naught 0, delta raised to power 5 y naught is equal to 0. तो ये तमाम के तमाम वैल्यूज को हमने इसमें पुट कर दिया है. ठीक है, इनकी तमाम वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे. ऑल ऑफ दिस वैल्यू जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट x is equal to 1.5. This is very easy. Forward difference table हमने पहले से सीखा हुआ है. You just need to just remember the formula of derivative. आपको वो पता होना चाहिए. ठीक है. Similarly to find the second derivative उसका formula ये है. This one, this is the formula of second derivative at x is equal to x naught. इसमें हमें क्या चाहिए डेल्टा स्क्वायर y naught. Okay, डेल्टा minus delta cube y naught plus 11 by 12 delta raised to power 4 y naught. और जब हमने इसकी वैल्यूज को पुट किया, ठीक है, as you can see here easily all of these values in this table are available. इन तमाम वैल्यूज को हमने इसमें पुट किया. So you can see what is the value of delta square y naught, that is 3 and 3 is this one. Delta raised to power cube y naught, that is equal to 0.750 as you can see this one, और delta raised to power 4 y naught that is equal to 0. तो यहाँ पे 11 और 12 into 0 वो 0 हो जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे, एज की वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 is the solution of this second derivative at x equal to x naught.
This is one example to find the derivatives by using Newton forward interpolation formula. I hope ये आपको क्लियर हो चुका होगा. Similarly, we have another question, question 2, and the question 2 is the population of a certain town is shown in the following table. This is the year and the population in thousands. Okay, this is population in thousands. We will multiply each value with 1000, it will become the population in thousands. Okay, so the question, what is the question? Find the rate of growth of the population in the year 1981. 1981. So you can see we need to find the rate of growth of the population, okay, at near the end value, जो x की end वाली values हैं year की, उस पे find करना है. So it's mean we will apply Newton backward interpolation formula और उसी के थ्रू जो derivatives हमने find out किए हैं वो हम find करेंगे. Okay, यहाँ rate of change है, ये भी derivative है. Find the rate of growth of the population. जो derivatives के फॉर्म में हम इसको find out करना है. This is also very easy. First of all, we will draw the table. हम सबसे पहले इसका टेबल ड्रॉ करते हैं. As you can see here, we have already drawn the table. टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले आपके लिखेंगे ईयर, और ईयर को हमने x कह दिया, पॉपुलेशन थाउजेंड्स को हमने y कह दिया, इन्वर्टेड डेल्टा y हम फाइंड करेंगे. ठीक है, दिस इज वेरी इजी, ये हमने पहले से भी फाइंड आउट करना सीखा हुआ है. 36.65 माइनस 19.96 को करेंगे तो 16.69 हमारे पास आ जाएगा. सिमिलरली वी विल फाइंड डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यूब y, एंड दिस इज डेल्टा inverted delta raised to power 4y. Okay, और हमें अब फार्मूला यूज करना है. द फार्मूला जो हमने डेरिवेटिव्स के अभी हमने फाइंड आउट किए थे बाय यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, उन फार्मूलाज को हम यूज करेंगे. ठीक है, और इसमें हमारे पास चूंकि बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इसमें हमारे पास ये जो वैल्यूज हमारे पास आती है इनको हम यूज करते हैं फार्मूला के अंदर. क्लियर? और जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता है उसमें हमारे पास जो टॉप की वैल्यू से हमारे पास आती है इस तरह से, इसके ऑपोजिट जो है वो हम यूज करते हैं. ओके, अब फार्मूला देखते हैं. व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द डेरिवेटिव? सो यू कैन सी हियर वी विल यूज न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, उसको हम यूज करेंगे. First of all, we will see what is age. What is the value of age? We can easily see the difference of the consecutive values of x, that is equal to 10. Okay, age is 10. And where we need to find xn is equal to, we need to find derivative at 1981. Okay, but xn, what is xn? This is xn, 1991. And what is delta? Delta yn, delta, this is delta yn because this is the value of, ये yn की वैल्यू होती है हमारे पास इस केस में, ये xn होता है हमारे पास here, this is xn. ठीक है, so this is, what is this? This is inverted delta, this is equal to inverted delta yn. And what is this? -1 inverted delta square yn, 2.76. what is this? This is inverted delta cube yn. And what is this? 11.99. this is inverted delta raised to power 4 yn, that is 11.99. Clear? Now this is the formula to find the derivative at x is equal to xn. ये भी हमने ऊपर फार्मूला भी देखा है, बट अब हम इसको कैसे यूज करेंगे वैल्यूज को? पहले हम p फाइंड आउट कर लेते हैं. व्हाट इज p? द फार्मूला टू फाइंड द p in Newton backward interpolation formula is this one. This is the formula of p. P is equal to x minus x and divided by age. अभी हमने देखा किस पे रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है? पॉपुलेशन 1981 पे. दिस इज x, एंड व्हाट इज xn? अभी हमने देखा डेट इज 1991.
what is h? h is 10. Simplify करेंगे, so this is the value of p. Clear? And also we know that all the other values जो भी हमने find out किए हैं, all the other values, कौन कौन सी और हमें values चाहिए? We need the value of delta, inverted delta yn, inverted delta square yn, we need inverted delta q yn, we need inverted delta raised to power 4y, and so on. So we will put all the values. p की value हमने -1 put की है, as you can see here, p is -1, okay, -1 का square, -1 square and so on. p की values जो है हम तमाम के तमाम इसमें put कर दिए, और इसी तरह से हमने जो डेल्टा, इन्वर्टेड डेल्टा yn, इन्वर्टेड डेल्टा स्क्वायर yn और इन्वर्टेड डेल्टा क्यूब yn और इन्वर्टेड डेल्टा रेज़ टू पावर 4 yn की वैल्यूज भी जब हम इसमें पुट की, सिंपलीफाई किया, सो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज 1.6440,833, ये हमारे पास आ जाता है. सो इस एग्जांपल में हमने देखा हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज एट द एंड पॉइंट्स बाय यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला. Now we have another example in which we will learn how to apply Newton Stirling interpolation formula if we need to find the derivative at any middle point. हमें किसी भी middle point पे find करना है तो वो कैसे करेंगे? As you can see here, you can see it. The question is given, and the question is find or obtain the value of f-90. It's mean कि हमें first derivative find करना है at point x is equal to 90 पे, using Stirling formula to the following data. So the values of x is given, as you can see here, and these values are equispaced, equidistant, and the difference is the value of h is equal to 15. ठीक है, सब में 15 का difference है, and these are the values of f of x. x is given, f of x is given. So first of all इसी तरह से हम क्या करेंगे, table draw करेंगे, and we have already learned how to find, how to draw the table of Stirling interpolation. इसमें x हम लिखेंगे, ठीक है, and this is f of x. Stirling interpolation में we will say this is x naught, middle value को this is x -1, this is x -2, और इसमें हमारे पास ये x1 होता है, and what is this? This is x2 होता है हमारे पास. Similarly, we will write the value of y, that is equal to f of x. इसके तमाम के तमाम values को लिख लेंगे. मिडिल वैल्यूज को हम y नॉट कहते हैं, उससे ऊपर वाले को y -1, y -2, ये हमारे पास y1 होता है, और ये हमारे पास y2 होता है. इसमें भी डेल्टा y हम फाइंड करेंगे, फिर डेल्टा स्क्वायर y हमने फाइंड आउट किया, डेल्टा रेज़ टू पावर 3 हमने y फाइंड किया, डेल्टा रेज़ टू पावर 4 y हमने फाइंड आउट किया. ठीक है, सो जब हम ये तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, एंड वी डिनोट हेयर द वैल्यूज, ये जो होती है हमारे पास डेल्टा y -1 होता है, दिस इज डेल्टा y नॉट, ये हमने लास्ट भी जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये सीखा, दिस इज डेल्टा स्क्वायर y -1, दिस इज डेल्टा क्यू y -2, दिस इज डेल्टा क्यू y -1, एंड दिस इज डेल्टा रेज़्ड टू पावर 4y -2. Now what is x नॉट? हमारे पास किस वैल्यू पे हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है? क्वेश्चन में देखें, लुक द क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 90. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 90, x naught is equal to 90, y naught is equal to this one 43.2, h is equal to 15, as you have already seen the question. To find the first derivative by using Newton-Stirling interpolation formula, so this is the formula, as you can see here. Here the value of h is 15, delta y naught plus delta y -1, as you can see. आप ये तमाम वैल्यूज को टेबल में मैं आपको फिर से शो कर देता हूँ अभी. एंड डेल्टा वाई नॉट की डेल्टा वाई -1, डेल्टा स्केयर वाई -1, डेल्टा क्यूब वाई -2. ठीक है, ये तमाम वैल्यूज हम टेबल में देख सकते हैं, एज यू कैन सी हेयर इन दिस टेबल ऑल द वैल्यूज आर
given with their names, ये तमाम values given है. This is delta y naught, delta y minus 1, delta is square y minus 1, delta q y minus 2. Okay, ये तमाम values you can see here. अब क्या करें, तमाम values को पुट कर दें फार्मूला में. जितने भी values हमारे पास हैं इन सबको पुट किया, डेरिवेटिव फाइंड आउट किया. So the derivative at x naught is equal to 90. First derivative is equal to 0.06722222. Okay, so in this lecture we learned how to find the derivatives by using Newton forward interpolation formula, by using Newton backward interpolation formula, and by using Newton Stirling interpolation formula.